everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start a new chapter of class 5th, which is chapter number 12 regarding force, work and energy. Okay, let's start it. So the very first topic which we have is force. So in the previous class, we have read that pushing or pulling of an object means we are applying a force on the object. So students, हमने अपने कुछ previous class में डिस्कस किया है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना means what कि we are applying force on that object, right? So most of the actions that we perform in our daily life, ज़्यादातर वो सभी actions जो हम अपने daily life में perform करते हैं, उन सभी actions में कहीं ना कहीं pushing या pulling involve होता है, okay? And इस तरीके से what we do, हम कहीं ना कहीं almost हर एक action में अपने क्या करते हैं, force apply करते हैं. Now force can be used. अब force को use किया जा सकता है एक stationary object को move करने के लिए, किसी एक moving object को stop करने के लिए, make a moving object move faster. एक already moving object की speed को fast करना है, then also we could apply force. Right, slow down the moving object. Already moving object की speed को slow down करने के लिए भी we have to apply force only. Change the direction of moving object की direction को if we want to change, या फिर किसी object की shape and size को change करना है. So for all these purposes we have to use force over there. Right? चलो. Now types of forces. अब कितने types के forces हैं? Number 1, frictional force. Magnetic force. So when we bring a magnet near iron nails, so जब भी हम एक magnet को iron nails के पास लेकर आते हैं, तो magnet उन nails को attract करता है. Because of what? Because magnet has a force that attracts iron nails. ऐसा क्यों होता है? कि magnet के पास एक ऐसा force होता है जो iron nails को अपने towards attract करता है. And ये जो force एक magnet के through apply किया जाता है किसी भी एक object पर, that is called magnetic force और magnetism. Okay? चल. Next is frictional force. Why does a rolling ball stop after some time? Second type of force हमारे पास friction force है और उसमें example given है कि क्यों एक rolling ball अपने आप कुछ टाइम बाद stop हो जाती है. Why? Because of force of friction. ये क्यों होता है? Friction force की वजह से होता है. Because friction force का काम है किसी भी एक moving object को slow down करना. We are able to walk because of friction force only. हम earth surface पे या किसी भी land surface पे walk कर पाते हैं because of friction force only. Then next is gravitational force. Everything that we throw up comes down. Right fruits always fall on the earth from the trees. We cannot jump beyond a certain height. Do you know why? See, हर एक चीज़ जिसको आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हो वो अल्टीमेटली नीचे ही आती है. जितने भी राइपन फ्रूट्स होते हैं वो भी ट्रीज से सेपरेट होने के बाद नीचे की तरफ ही अर्थ पे फॉल करते हैं, है ना. अगर आप जंप करते हो तो आप जंप में भी एक सर्टेन हाइट के बाद उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते. Why does this all happen? Okay, so our earth exerts a force on every object that attracts object towards the center of the earth and this force is known as gravity or gravitational force. So ऐसा क्यों होता है? Because हमारा earth students हर एक object पर जो उसके ऊपर है उन सभी object के ऊपर earth एक force exert करता है and उस force की वजह से वो सारे objects earth के center के towards attract होते हैं. इसी force of attraction को जो हमारा earth exert करता है that is known as gravity or gravitational force. Then next we have elastic force. A stretched rubber band regains its original position or being released because of elastic force. एक stretched rubber band है, आपने rubber band को stretch किया और उसके बाद जब आप उसको release कर दोगे तो वो अपने आप अपनी original position पे आ जाता है. जिसकी वजह से elastic force की वजह से. So elastic force कब arise होता है? जब एक body deform हो जाती है. Okay? चलो. So these were the different type of forces and now next we have the topic that is work. Place a book on the top of a table. एक बुक आपको टेबल के ऊपर रखनी है. उसके बाद आप उस बुक को मूव करोगे टू द साइड ऑफ द टेबल. यू अप्लाई फोर्स टू मेक द बुक मूव. आपने क्या करा? उस बुक को असाइड थोड़ा सा साइड शिफ्ट करने के लिए फोर्स अप्लाई किया. सो वर्क इज डन व्हेनेवर अ फोर्स मेक्स एन ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो वर्क हमेशा कहाँ माना जाता है? जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करो एंड इस फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आई, वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए, देन इन साइंटिफिक मैनर वी कंसीडर दैट द वर्क हैज बीन डन ओवर देयर. राइट? सो यू डू वर्क व्हेन यू मूव द बुक अक्रॉस द टेबल. सो जब भी आपने अभी उस बुक को जब क्या करा, मूव करा अक्रॉस द टेबल, देन इन साइंटिफिक मैनर यू हैव डन द वर्क ओवर देयर. Okay, the amount of work we do depend on how much force we use and how far the object moves. So हम कितना वर्क कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि हमने कितना फोर्स अप्लाई करा एंड इस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट आया. If a force acting on an object does not move it, no work is done. Okay, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया एंड उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल प्लेस से मूव नहीं हो रहा है, इट इज स्टिल ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन ओनली. दैट मीन्स देयर इज नो वर्क डन. ओके, सी लुक एट द बॉय इन द अलोंगसाइड फिगर. यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है एंड इस पिक्चर में अगर आप इस बॉय को देखोगे, ये बॉय क्या कर रहा है, ये यहाँ पे वर्क डन जो है इस बॉय का वो जीरो हो. वाई?
बिकॉज ये पर्सन, ये जो बॉय है, ये वॉल को पुश कर रहा है, उस वॉल को पुश करने के लिए ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन इस फोर्स की वजह से वो वॉल जो है अपने ओरिजिनल पेस से डिस्प्लेस नहीं हो रही है। एंड एज आई टोल्ड यू, फोर्स भी अप्लाई होना चाहिए एंड उस फोर्स की वजह से वहाँ पे ऑब्जेक्ट पर डिस्प्लेसमेंट क्या आना चाहिए। सो यहाँ पे वर्क डन 0 माना जाएगा, बिकॉज ये फोर्स तो अप्लाई कर रहा है, लेकिन फोर्स की वजह से वॉल जो है वो मूव नहीं कर रही है। दैट मीन्स व्हाट, कि देयर इज नो वर्क डन। See, this boy is not doing work. Why? Because he is not making the wall move through a distance. Okay? Chalo. Now, the next topic which we have is machines. Machines are tools that help us to make our work easier and faster with less effort. So, machines क्या है students? Machines वो tools होते हैं जिसकी वजह से हमारा work easy and faster हो जाता है, वो भी काफ़ी कम effort apply करके। सो कुछ मशीन्स होती हैं स्टूडेंट्स जो सिंपल होती है, यानी कि इनमें बेसिकली हमें मस्कुलर फोर्स का यूज़ करना होता है। एंड कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स मशीन्स जो हैं उनमें 2 और मोर सिंपल मशीन्स एक साथ ही वर्क करती हैं। दे यूज़ इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल टू मेक एनर्जी, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं उनमें क्या इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल का यूज़ होता है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। अ मशीन कैन चेंज द अमाउंट, एक मशीन क्या किसी भी एक फोर्स के अमाउंट, स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर सकती है फॉर अ यूजफुल पर्पस। ओके, चलें। Thus, a simple machine is a device that makes the work easier and faster. Scissors, knives, tweezers and tongs are some examples of simple machines. So, अभी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं सिंपल मशीन्स के बारे में। तो सिंपल मशीन एक ऐसी डिवाइस है जिससे हमारा वर्क इजी एंड फास्टर हो जाता है। एग्जाम्पल, सीजर, नाइफ, ट्वीजर, टोंग्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम सिंपल मशीन। सिंपल मशीन्स आर ग्रुप्ड एज लीवर। सिंपल मशीन्स को उसके बाद हम कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, लाइक लीवर, व्हील एंड एक्सिल, पुली, वेज, इंक्लाइन प्लेन एंड स्क्रू। So number 1 which we have is lever. Lever is a rigid rod which can turn about one fixed point. So lever एक rigid यानी कि एक hard rod kind of material होता है जो एक fixed point पर turn करता है। Okay, इस fixed point को fulcrum कहा जाता है and वो weight जो इस lever के through lift किया जाता है that is called load. Okay, फिर उस lift को load करने के लिए जो force apply किया जाता है that is called effort. राइट, सो अ लीवर हेल्प्स टू लिफ्ट और मूव समथिंग विद लेस एफर्ट। सो इससे क्या समझ में आता है कि लीवर एक ऐसी सिंपल मशीन है जिसके थ्रू आप बहुत ही कम एफर्ट अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट या मूव कर सकते हैं। इफ यू हैव टू मूव अ बोल्डर यू यूज अ लीवर। अगर आपको एक बोल्डर भी मूव करता है तो उसके लिए भी आप लीवर यूज कर सकते हैं। Now, based on the position of the fulcrum, the load and the effort, scientists have classified levers into the following 3 types. सो फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट की क्या पोजीशन होगी, इस बिहाफ पर हम लीवर्स को या साइंटिस्ट ने लीवर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1, फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर्स में जो फल्क्रम वाला पार्ट है स्टूडेंट्स वो बिटवीन होता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज लोड, दिस इज एफर्ट एंड फल्क्रम वाला पार्ट बीच में है। इस टाइप ऑफ लीवर को फर्स्ट क्लास लीवर कहा जाता है। लोड एंड एफर्ट जो है वो फल्क्रम के ईदर साइड पे लोकेटेड होते हैं। सो कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास लीवर के, दैट इज हैंड पंप, seesaw, beam balance and hammer. Okay, then second we have second class lever. Second class lever में load आपका बीच में होता है and effort and fulcrum आपके load के दोनों ही साइड पे प्रेजेंट होते हैं। Example, wheelbarrow, bottle opener and nutcracker. Okay, then third we have third class lever. Third class lever में effort will be in the middle portion and fulcrum and load will be on the either side of the effort. Example, fire tongs, bat and hockey stick. Okay, now next we have pulley. Pulley consists of a wheel with grooved rim with a rope or chain on the groove. Pulley क्या है, पुली में एक व्हील होता है जिसका एक ग्रूव्ड रिम होगा, उसके साथ एक रोप होगी या एक चेन होगी उस ग्रूव के ऊपर, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, ये व्हील है, ये आपका ग्रूव्ड रिम है एंड इसमें क्या एक रोप टाइप की है। द पुली इज यूज टू लिफ्ट हेवी लोड्स। पुली को भी काफी हेवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फोर्स अप्लाई किया जाता है रोप के एक एंड से एंड उस रोप का जो दूसरा एंड होता है वो उस लोड को होल्ड करता है। पुली अपने इस एक्सिस पे रोटेट करता है एंड मेजरली 2 टाइप्स की पुलीज होती हैं, दैट इज फिक्स्ड पुली एंड द अदर इज मूवेबल पुली। देन थर्ड टाइप ऑफ सिंपल मशीन व्हिच वी हैव इज इंक्लाइन प्लेन. Inclined plane is a gentle slope that help us to move a heavy load with less effort. Inclined plane क्या है, एक gentle slope है इस लाइन में। ओके, इट्स अ फ्लैट स्लोप जिसके थ्रू हैवी लोड को काफी लेस एफर्ट के साथ मूव अप या लोड डाउन किया जा सकता है। इट इज मच इजियर टू पुश अप और रोल अप ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लोप रादर देन लिफ्टिंग देम अप। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को जो काफी हैवी है या फिर एक हैवी लोड को पुश या पुल करना इजी हो जाता है एक स्लोप पर रादर देन लिफ्टिंग देम अप, राइट। रैंप आप एग्जाम्पल है इंक्लाइन प्लेन का ही, उसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल है लाइक वुडन प्लैंक, स्टेयरकेस, स्लोपिंग रोड्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ओके,
You must have seen the inclined planes in hospitals. Hospitals में भी we have seen the inclined planes. Trolleys, wheelchairs, carrying patients are pushed into the hospital on these only. ठीक है, जो ट्रॉलीज या व्हीलचेयर जिनमें पेशेंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, इन हॉस्पिटल्स में इन्हीं इंक्लाइन प्लेन्स के थ्रू पुश किया जाता है. दे आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द पीपल हु कैन नॉट वॉक अप स्टेप्स ईजिली एंड नीड हेल्प. ऐसे लोग जो ईजिली वॉक नहीं कर सकते या फिर स्टेप्स ईजिली स्टैंड अप नहीं कर सकते, उनको हेल्पफुल होती है ये आपके इंक्लाइन प्लेन. समटाइम्स दे मे बी फाउंड इन होटल्स टू. होटल्स में भी आपने देखा होगा, कभी कभी कुछ होटल्स में भी इंक्लाइन प्लेन देखने को मिलते हैं. Then next we have screw. Screw is a simple machine that resembles a nail with grooves in it. Screw भी एक simple machine है जो एक nail की तरह दिखती है, लेकिन इस nail के ऊपर क्या होते हैं, grooves होते हैं, right? It has a winding edge with threads. इसके जो edges होते हैं winding होते हैं with threads. Actually ये एक inclined plane है जो कि rod के around wrapped होता है. Okay? It is helpful in holding things together. चीज़ों को एक साथ ही hold करने में we use a screw. स्क्रू कोई भी दो वुडन प्लैंक को फिक्स करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, एंड बेटर देन नेक, राइट. अ स्क्रू जैक आल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ स्क्रू. एक स्क्रू जैक भी स्क्रू के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है, एंड जो स्क्रू जैक का स्लोप होता है वो उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम काफी हैवी थिंग्स को लिफ्ट अप कर सकते हैं, लाइक कार्स एंड ट्रक. नेक्स्ट वी हैव व्हील एंड एक्सिल. सो वी नो दैट पुशिंग द लोड ऑन व्हील इज इजियर देन कैरिंग इट. ओके, किसी भी एक लोड को व्हील्स पर पुश करना बेटर, ये काफ़ी इजी है एज कम्पेयर टू कैरिंग इट. बट द व्हील बाय इटसेल्फ इज नॉट अ सिंपल मशीन. लेकिन जो व्हील अपने आप में क्या है, एक सिंपल मशीन नहीं है. इट बिकम्स वन ओनली व्हेन अ रॉड और एन एक्सिल इज अटैच्ड टू इट. ओके, ये आपके लिए कब इजी होती है, जब एक रॉड या एक्सिल इसके साथ अटैच्ड होती है. अ व्हील विद अ रॉड अटैच्ड टू इट नोन एज व्हील एंड एक्सिल अरेंजमेंट. एक व्हील जिसके साथ रॉड अटैच्ड होगी उसे क्या कहा जाता है, व्हील एंड एक्सिल अरेंजमेंट कहा जाता है. व्हील एंड एक्सिल अरेंजमेंट्स आपकी यूज होती है इन मोस्ट ऑफ द बिग मशीन्स. जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उनमें मोस्टली व्हील एंड एक्सिल वाली सिंपल मशीन्स का यूज किया जाता है टू मेक इट वर्क इजियर एंड फास्टर विद लेस एफर्ट. नाउ नेक्स्ट वी हैव वेज. वेज हैज टू इंक्लाइन प्लेन्स. वेजेस क्या होते हैं, वेजेस में दो इंक्लाइन प्लेन्स होते हैं जो बैक टू बैक जॉइंट होते हैं, एंड उसका एक एंड जो है वो शार्प होता है. ओके, when the woodcutter puts the cutting edge on the log and blow hard with the hammer, the edge of the wedge splits the log into two gradually. जब वुड कटर क्या करता है, जो कटिंग एज होती है वेज की, उसको कहाँ वुडन प्लैंक के लॉग पर रखेगा, और इसको हैमर के थ्रू क्या करता है, ग्रिट करता है हार्डली. वो एज की जो वेज की एज होती है वो उस वुडन ब्लॉक को टू पार्ट्स में इवेंचुअली क्या कर देगी, स्प्लिट कर देगी. द टिप ऑफ द वेज मूव्स अ लिटिल बट द स्प्लिट इज मच. वेज की जो टिप है वो बहुत स्लोली मूव करती है, बहुत ही लिटिल डिस्टेंस मूव करती है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है उसके थ्रू किया गया स्प्लिट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है. दैट इज हाउ वेज मेक्स वर्क ईजियर. इस तरीके से वेज हमारे वर्क को ईजियर बनाता है. इट इज प्रोबेबली द ओल्डेस्ट मशीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स. सबसे पुरानी मशीन है जो ह्यूमन बीइंग्स यूज कर रहे थे, एंड आज भी हम इसको करंटली भी यूज करते हैं. एंड एग्स एंड अ नाइफ आर ऑल्सो वेजेस. एग्स हो गया, नाइफ जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो भी क्या है, वेज है. आप इन्हें चीज़ों को कट करने के लिए यूज करते हो. प्लो हैज अ लॉन्ग एंड शार्प एज. प्लो जिसको आप कॉमनली यूज करते हैं उसमें भी एक लॉन्ग एंड शार्प वेज होता है जिसको स्प्लिटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है. So these were the simple type of machines which we have discussed, and now next topic which we have is energy. So energy is a common term that we use in our daily life. Okay, एक common से term है जिसको हम अपने daily life में use करते हैं, that is energy. Okay, we get food, है ना, food खाते हैं to get energy only. We need energy. अब energy की requirement क्यों है, various kind of work को करने के लिए. We feel tired. अगर हम कुछ टाइम के लिए work करते हैं तो हम tired feel करने लगते हैं. एंड अगर हमारी बॉडी में एनर्जी लेफ्ट नहीं होगी, बची नहीं होगी, सो वी विल नॉट हैव एनी कैपेसिटी टू डू वर्क एनी मोर. बाय दिस वी अंडरस्टैंड दैट एनर्जी एंड डूइंग वर्क आर रिलेटेड. तो इससे क्या समझ आता है कि डूइंग वर्क करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है ना. दैट मीन्स एनर्जी एंड डूइंग वर्क आर इंटरलेटेड टू ईच अदर. एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू वर्क. किसी भी काम को या वर्क को करने की कैपेसिटी को कहा जाता है एनर्जी. वी नीड एनर्जी टू पुश अ साइकिल अलोंग. एक साइकिल को पुश करने के लिए एनर्जी चाहिए. आपने बैग को which is full of books, ठीक है, बैग ऑफ बुक्स को लिफ्ट करने के लिए फ्रॉम द फ्लोर, अगेन वी रिक्वायर एनर्जी टू रन, टू प्ले एक्सेट्रा. सो डिफरेंट एक्टिविटीज, ऑलमोस्ट सभी एक्टिविटीज जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं वो सभी को परफॉर्म करने के लिए वी रिक्वायर एनर्जी. एनिमल्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू डू देयर वर्क. एनिमल्स को भी अपना वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए. इट इज एनर्जी दैट गिव्स पावर टू वर्क. ओके, ये एनर्जी ही होती है जिससे आपको किसी काम को करने की पावर मिलती है.
Now different forms of energy. अब एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती है. नंबर 1 मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू पोजेस करी जाती है ड्यू टू मोशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन. एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसके मोशन या उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है दैट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. ओके, चलिए. Mechanical energy can be either kinetic, that is energy of motion, or potential energy, that is stored energy of position. अब mechanical energy दो types की होती है, either kinetic और another is potential. Kinetic energy वो energy है जो motion की वजह से possess होती है, and potential energy position की वजह से आती है. अब एक मूविंग कार के अंदर मैकेनिकल एनर्जी है ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है. एंड एक ड्रॉन बो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को पोजेस करता है ड्यू टू इट्स स्ट्रेच पोजीशन, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. And next we have electrical energy, the energy that we get from electric current. Electric current के थ्रू जो एनर्जी आती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है. एंड इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने के लिए, लाइक टेलीविजन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा. इट इज़ जनरेटेड एट पावर स्टेशंस. ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कहाँ जनरेट किया जाता है? पावर स्टेशंस पे. एंड उसके बाद हमारे होम्स में सप्लाई किया जाता है. एंड नेक्स्ट वी हैव हीट एनर्जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. सबसे इंपॉर्टेंट या जितने भी इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट एनर्जी क्या है? दैट इज हीट एनर्जी. एनर्जी इन अदर फॉर्म ऑफन इज चेंज टू हीट एनर्जी. ओके, जो बाकी फॉर्म्स पे एनर्जी है वो भी इवेंचुअली क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं हीट एनर्जी में चेंज होती है बिफोर इट इज यूज्ड. इन स्टीम इंजन में जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज होती है और उसी की वजह से जो वाटर है वो स्टीम में चेंज हो पाता है. ओके, नाउअडेज आज के टाइम में नियरली हमारी लाइफ का हर एक एस्पेक्ट जो है वो हीट के थ्रू कंट्रोल होता है. बाय ट्रैवलिंग इन अ बस और कार, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, कार में ट्रैवल कर रहे हो, उसमें भी आप हीट एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट हो जो क्या है इनसाइड द इंजन है फॉर इट्स मोशन, राइट. फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर डे टू डे वर्क के लिए जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके लिए भी हम फूड कंज्यूम करते हैं विच इज कुक्ड बाय हीट एनर्जी ओनली. ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी हैव इज विंड एनर्जी. विंड एनर्जी इज प्लेंटिफुल. विंड एनर्जी प्लेंटिफुल है यानी कि अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, रेन्यूएबल है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लीन एंड नॉन वॉल्यूटिंग है, राइट. इसीलिए इसको कंसिडर किया जाता है बाय द एक्सपर्ट टू बी मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली देन मेनी अदर एनर्जी सोर्सेज. सो विंड पावर क्या है? विंड पावर ये होता है जिसमें आप एक विंड एनर्जी को कन्वर्ट करते हो यूजफुल फॉर्म में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग विंड टर्बाइन. नेक्स्ट है सोलर एनर्जी, एनर्जी ऑफ द सन. सन की एनर्जी को सोलर एनर्जी कहा जाता है. इसको आप यूज करते हैं टू कुक फूड इन सोलर की कुकर्स, टू हीट वाटर इन सोलर हीटर. ठीक है, वाटर को हीट अप करना है सोलर हीटर में या फिर सोलर कुकर में फूड कुक करना है, तो इसके लिए भी यूज सोलर एनर्जी ओनली. ओके, उसके साथ साथ सोलर कैलकुलेटर, सोलर वॉचेस में भी सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है. ओके, द नेक्स्ट वी हैव मैग्नेटिक एनर्जी. अब मैग्नेट ऑल्सो पोजेस एनर्जी. मैग्नेट में भी एनर्जी होती है. ओके, एज यू ऑल नो, एक आयरन नेल जो है मैग्नेट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होता है. काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे स्क्रैप आयरन को सेपरेट किया जाता है एक वेस्ट मटेरियल के हीप में से, किसका यूज़ करके? वेरी बिग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करके विच आर फिटेड टू अ क्रेन. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव साउंड एनर्जी. साउंड इज वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड थ्रू अ सॉलिड. वो वाइब्रेशन जो किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, उन वाइब्रेशंस के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती है. ओके, यानी कि जब एक फोर्स की वजह से एक ऑब्जेक्ट या एक सब्सटेंस वाइब्रेट करता है, देन ओवर देयर अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. सो कुछ सोर्सेस हैं साउंड एनर्जी के, दैट इज म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड रेडियोस. Then next we have other sources of energy. In our country, huge amount of cattle dung is used to make dung cake and burnt for cooking and heating water. So हमारे कंट्री में काफ़ी बड़ा अमाउंट ऑफ कैटल डंग जो होता है उसको यूज़ किया जाता है डंग केक बनाने के लिए, या उसको बर्न किया जाता है कुकिंग पर्पज़ के लिए, हीटिंग वाटर पर्पज़ के लिए. इफ़ द डंग इज मिक्सड वाटर, अगर आप इस डंग को वाटर के साथ मिक्स करेंगे सो ये एक गैस प्रोड्यूस करता है जिसको बायोगैस या गोबर गैस बोला जाता है. एंड इस गैस को यूज़ किया जाता है फॉर कुकिंग, हीटिंग वाटर या इन गैस लाइट में. एंड जो रिमेन पार्ट बचता है डंग का, उसको आप एक अच्छे कॉम्पोस्ट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, कॉम्पोस्ट मेन्योर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, जो कि एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द प्लांट, जिससे प्लांट्स को क्या न्यूट्रिशन डिराइव हो सकता है फ्रॉम द सॉइल. Now, the last topic is conservation of energy. So, we are mostly dependent on fossil fuel for our energy requirement. So, mostly हम सभी अपने energy requirement के लिए fossil fuels के ऊपर dependent है. And fossil fuels हमारे non-renewable sources of energy होते हैं. That means what कि इनका stock limited है. Okay? So, one day we should exhaust them all. और इसी तरीके से अगर हम इन्हें use करेंगे, so एक दिन हम इन सभी fossil fuels को exhaust कर देंगे, यानी कि completely use कर लेंगे. So we must learn to preserve the available source of energy. इसीलिए जो और दूसरे alternative sources of energy है उनका यूज़ करना हमें सीखना है,
सो वी शुड यूज फॉर्दर फ्यूज इकोनॉमिकली, एंड फॉर्दर फ्यूज का यूज एक इकोनॉमिक मैनर में करना सीखना होगा. वी शुड नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूज. इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूज का वेस्टेज नहीं करना है. वी मस्ट फाइंड ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. कुछ और भी ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को हमें फाइंड करना पड़ेगा सो दैट फॉर्दर फ्यूज का जुडिशियली एंड इकोनॉमिकली यूज हो सके. ओके, वी मस्ट मेक यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं लाइक सन, वाटर, विंड, बायोमास, इसका हमें यूज करना है इंस्टेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. The use of renewable source of energy will not only reduce our dependence on fossil fuel but also help in reducing pollution. So, अगर हम renewable source of energy का use करते हैं तो इससे केवल हमारी जो डिपेंडेंसी है fossil fuels पे वो ही reduce नहीं होगी, बल्कि हम pollution को भी control कर सकेंगे on the earth surface. Okay, so the chapter is completed. I hope you all must have understood it. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.